So we were talking about that plasma membrane कैसी होती है, selectively permeable membrane होती है, and the transport of substances across the plasma membrane takes place by a method called diffusion. Method of diffusion involves transport of substances from a region of higher concentration to lower concentration. Let us take this with a one more example. ये जो sugar का example बताया, that was an example not given in your textbook. It is just for your understanding. Now we talk about an example from your textbook only. So here we said that plasma membrane is already a selectively permeable membrane. So one of the most common example of diffusion is diffusion of the gases O2 and CO2. So we talk about the diffusion of gases O2 and CO2 across the plasma membrane. We talk about diffusion of O2 and CO2 across प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो सेल जो होता है, सेल हैज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, large amount of CO2 as a waste product of cellular एक्टिविटी. क्या हमने लिखा है कि सेल है, तो सेल के पास क्या होता है कि सेल के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन है, ये CO2 का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है. CO2 का अमाउंट ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज. क्योंकि सेल में क्या होता रहता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, फॉर्मेशन होता है कई सब्सटेंसेस का, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तो वो एक वेस्ट सब्सटेंस है. और ये वेस्ट सब्सटेंस एक्यूमुलेट कहां पे हो जाता है? इनसाइड द सेल. सो दिस CO2 इज इन higher concentration within the cell. ऐसा हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर CO2 क्या है? CO2 is in higher concentration, मतलब ज्यादा अमाउंट में है. कहां पे ज्यादा अमाउंट में है? सेल के अंदर. तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा है और सेल के बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में द अमाउंट ऑफ CO2 इज लेस. द अमाउंट ऑफ CO2 the amount of CO2 in external environment, यहाँ पे मैंने EN भी लिखा है, मतलब environment is less as compared to inside the cell. मतलब सेल के अंदर CO2 ज्यादा है और सेल के अंदर CO2 क्या है? कम है. So CO2 concentration is less outside the cell. मतलब सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है. So CO2 will diffuse, carbon dioxide will simply diffuse outside the cell. क्या हो जाएगा? सेल के बाहर. मतलब मान लो ये सेल है हमारा एक, राइट, और सेल के पास में ही कोई ब्लड कैपिलरी है. क्या है? ब्लड कैपिलरी. और सेल के अंदर बन रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2. बाहर जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर CO2 का अमाउंट कम है, तो CO2 कौन सी डायरेक्शन से ट्रेवल करेगा? सेल टू द capillary, that is from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है? Similarly, amount of oxygen is more outside the cell and less inside the cell. अगर हम O2 की बात करें
तो अमाउंट ऑफ O2 ज्यादा कहां पे होता है, बाहर ज्यादा है, मोर ऑन द आउटसाइड एंड इट इज लेस ऑन द इनसाइड। सेल के अंदर कम इसीलिए होता है क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन जो भी एंटर हुआ वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज हो जाता है। शायद आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। मतलब क्या होना कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो जो है वो रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन, फूड के ब्रेकडाउन में यूज हो जाता है। इसलिए सेल के अंदर O2 का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ O2 inside the cell is always less and the amount of O2 in outside the cell, that is in the capillary, is more. So amount of O2 is more outside and less on the inside the cell. Thus O2 will diffuse from outside, that is higher concentration to lower concentration, that is inside the cell. मतलब अगर O2 की डायरेक्शन है तो कौन सी होगी, this one, that is from outside to inside. पर simply gases diffuse तो कैसे हो रहे हैं, on the basis of their concentration. They are not dependent on each other. Each gases is moving independently from a region of higher concentration to lower concentration. Water also moves. Water also moves from higher concentration to lower concentration by diffusion. अगर पानी की बात करें तो पानी भी किस तरह से मूव होगा, डिफ्यूजन से ही होगा. It is also same, higher concentration to lower, but this process is known as, but this transport of water is called, वाटर के ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, osmosis. What it is called, osmosis. The transport of water across the plasma membrane is called osmosis. So in the next lecture we will talk about the three different types of solutions and how the transport or how the plasma membrane helps in the transport of substances. Good morning, dear students. Dear students, till now in this chapter we have discussed about the cell, various discoveries associated with the cell. We have also discussed about the most important components of the cell, that is cytoplasm and the plasma membrane as well as the nucleus. We had discussed about these terms and now we had started with the first essential component of the cell, that is the plasma membrane. हमने बात की थी that plasma membrane जो होती है वो एक selectively permeable membrane होती है because it will allow certain substances to enter and exit out of the cell and also it will prevent the entry and exit of certain substances from or outside the cell. So this is the reason why plasma membrane is called selectively permeable. Then how does the transfer of substances takes place? The transfer of substances like gases and water, gases और water का दोनों का transport किस mechanism से होता है? It occurs by the mechanism called diffusion. जो mechanism से water और gases transport होते हो उस mechanism को क्या कहा जाता है? Diffusion कहा जाता है. Diffusion is simply movement of a substance, whether it is water or whether it is gas. Movement of the substance from a region of higher concentration to lower concentration. इसे हम क्या कहते हैं? Diffusion कहते हैं. जब भी कोई substance higher concentration से lower concentration की तरफ move होता है across a semi-permeable membrane, तो उसे हम क्या कहते हैं? Diffusion कहते हैं. डिफ्यूजन में हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो एग्जाम्पल था ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. CO2 और O2 इनका एक्सचेंज हमने देखा था विद इन द बॉडी
एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल था डिफ्यूजन का। We have also discussed that transport of water across the semi-permeable membrane is known as osmosis. तो हमने osmosis की बात की थी। We have started with osmosis, that osmosis it is the transport of water across the plasma membrane from a region of higher water concentration to lower water concentration। मतलब वाटर किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, डाइल्यूट से लेके कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब क्या, जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या, जहां पे पानी का अमाउंट कम है। तो वाटर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन मतलब अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन मतलब अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस डायरेक्शन में वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। However, transport of water also depends upon the substances dissolved in water। Substances dissolved in water मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वाटर कौन सी तरफ ज्यादा है। जिस तरफ ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ वो मूव होगा। पर सेकेंड थिंग इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन इट। कितने सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड है, जैसे कि हमने कल लिखा था दैट 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर वाटर and 100 grams of sugar in 1 liter of water। तो वाटर की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वाटर की डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड करती है, कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं उस पे। सो इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस transport will continue till equilibrium is achieved। ये जो ट्रांसपोर्ट है वो चालू ही रहेगा। कब तक चालू रहेगा ये ट्रांसपोर्ट, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम आ नहीं जाता। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों ही तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो इसी के बेसिस पे हम 3 तरह के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक तो हमने देख लिया ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में वाटर का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम डाइल्यूट सैंपल टू कंसंट्रेटेड, या तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। कब तक कंटिन्यू रहेगा ये ट्रांसपोर्ट, जब तक दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। ये तीनों सॉल्यूशंस को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो कब हम सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहेंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक कब कहा जाता है, दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग वाटर मतलब सराउंडिंग फ्लूइड इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर। सेल के आसपास जो फ्लूइड है, जब वो फ्लूइड बहुत ही डाइल्यूट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो आई एम मेंशनिंग if the
fluid surrounding the cell has higher water concentration, is having higher water concentration as compared to the fluid within the cell. मतलब क्या लिखा है हमने, फ्लूइड सराउंडिंग द सेल. ठीक है, ये मान लो ये सेल है, राइट? तो ये सेल के आसपास जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर. क्या हमें अज्यूम करना है कि सराउंडिंग जो फ्लूइड है इट इज हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है. हायर वाटर कंसंट्रेशन मतलब कैसा सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट. कैसा सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट. और जबकि सेल के अंदर का जो फ्लूइड है इट इज हैविंग लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब ये कैसा हुआ, कंसंट्रेटेड हुआ. तो वाटर की डायरेक्शन क्या होगी इस टाइम पे, द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन. मतलब सारा ही पानी क्या होगा, बाहर से कहां आने लगेगा, अंदर. सो सेल दैट इज वाटर इज स्टार्टेड टू एंटर from a dilute solution to concentrated. So movement of water will be in this direction. हर जगह से पानी अंदर आ रहा है. As a result सेल क्या हो जाएगा, swell. क्योंकि पानी सब अंदर आ रहा है इसीलिए सेल क्या हो जाएगा, swell. So in this condition the water will enter into the cell. यहाँ पे मतलब हम लिख रहे हैं that is from higher water concentration, that is dilute, to concentrated direction. dilute से किस तरफ आएगा, concentrated. तो सारा ही पानी कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर. and therefore the cell will swell. मतलब अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपोटोनिक मतलब बाहर का सोल्यूशन जो डाइल्यूट है उसे क्या कहा जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. मतलब अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. वापस एक बार देखिए क्या लिखा है, द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन. मतलब पानी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है. बाहर पानी का अमाउंट ज्यादा है, सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम है. एज अ रिजल्ट वाटर विल एंटर फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. एक्चुअली वाटर तो कोई भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, राइट? पर यहाँ पे वाटर बाहर से अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर डाइल्यूट है और अंदर कंसंट्रेटेड. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सारा ही वाटर अंदर की तरफ आ रहा है. अंदर आने की वजह से सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है. तो अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल इज गोइंग टू स्वेल. इट इज गोइंग टू स्वेल मतलब बल्ज हो जाने वाला. राइट? इसका बहुत इजी एग्जांपल है. आप वो रात को क्या कर सकते हो, एट द नाइट टाइम यू कैन टेक सम रेजिन्स. रेजिन्स जो होते हैं, ड्राई रेजिन्स जो होते हैं, उनको आप पानी में सोक कर दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिएगा तो सारे ही रेजिन्स कैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे. राइट? ऑल द रेजिन्स आर गोइंग टू स्वेल अप. राइट? तो ये जो होता है, सिमिलरली आप वो मूंग ले सकते हो, मूंग को रात को भिगो दो, नेक्स्ट डे आप देखो तो सारे ही क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव हुआ है. तो ये जो सराउंडिंग सोल्यूशन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. सो सेल इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन इट विल स्वेल. ठीक है? सेकेंड टाइप का सोल्यूशन हम ले लेते हैं, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. राइट? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, दैट इफ द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द फ्लूइड विद इन द सेल. अब दोनों ही तरफ वाटर कंसंट्रेशन सेम है,
इन केस, मतलब सेल के बाहर भी उतना ही वाटर का अमाउंट है जितना सेल के अंदर है। तो इस केस में वाटर किस तरफ मूव होगा? Some water will exit out of the cell and some water will enter into the cell. But there will be no net exchange of water amount, and therefore the cell will neither swell, the cell will neither shrink. Instead, the cell remains as it is if it is placed in isotonic solution. So I will mention over here that if the fluid surrounding the cell has same water concentration as within the cell, there is no net movement of water molecules. There is no net movement of water molecules across the cell, or you can say across the membrane. So cell will neither swell, cell will neither shrink, and such a solution is called isotonic. मतलब अंदर जितना वाटर कंसंट्रेशन है उतना ही बाहर है, मतलब थोड़ा बहुत पानी अंदर आया होगा और थोड़ा बहुत पानी एग्जिट हो जाएगा, इसीलिए कोई नेट मूवमेंट नहीं है वाटर की। तो इस केस में नाइदर द सेल इज गोइंग टू स्वेल, नाइदर इट इज गोइंग टू श्रिंक, राइट? सो हियर आल्सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the movement of water molecules can be in both directions, but amount of water entering the cell is same as that exits. It is same as that exits. देखो क्या लिखा है, if the fluid surrounding the cell, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड है वो is same water concentration as within the cell, उसका भी वाटर कंसंट्रेशन उतना ही है जितना सेल के अंदर वाटर है, so there will be no net movement. फिर हमने क्या लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर होगा भी तो इट विल बी इन बोथ डायरेक्शंस, some amount of water will exit and some amount of water will enter, so there is no net flow of water molecules, and such a solution is called isotonic solution. मतलब इस केस में बाहर का सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक. यहाँ पे जब बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक. थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू टॉक इज हाइपरटोनिक. So as we have discussed that the first type of solution is known as the hypotonic solution, जिसमें surrounding water जो है वो dilute है, इसलिए पानी जो है that is coming from outside, that is dilute solution to concentrated, that is within the cell. As water enters into the cell will swell up. The second type of solution was isotonic solution. In isotonic solution, what is going to happen? The water is going to, that is the surrounding water is concentrated as compared to, isotonic solution in which the surrounding water is having same concentration as the concentration of water within the cell. दोनों ही तरफ equal है water concentration. Therefore, some amount of water molecules can exit, some will enter, but there will be no net flow of the water molecules across the plasma membrane. So neither the cell will swell nor the cell will shrink. The third type of solution that we are talking about is the hypertonic solution. Hypertonic solution. So in hypertonic solution, the surrounding fluid, that is the fluid surrounding the cell, is having lower water concentration. The fluid surrounding
surrounding the cell has lower water concentration. मतलब ये फ्लूइड कैसा हुआ, बाहर की तरफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन है, इसीलिए फ्लूइड हुआ कंसंट्रेटेड. कैसा फ्लूइड हुआ, कंसंट्रेटेड, एज कंपेयर्ड टू द फ्लूइड विदिन द सेल. मतलब अंदर जो है वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पर बाहर की तरफ वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है. वाटर का कम होना मतलब वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कैसा हुआ, कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट क्या है, कम, और सॉल्यूट्स बाकी सब क्या है, ज्यादा, इसलिए बाहर का सॉल्यूशन कैसा हुआ, कंसंट्रेटेड. तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सेल है, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है, यहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन. लोअर वाटर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन कैसा हुआ, hypertonic. The solution is hypertonic, whereas cell is having somewhat higher water concentration. सेल के अंदर पानी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, सेल के बाहर पानी का अमाउंट बहुत ही कम है. As a result, water will move from higher water concentration to lower water concentration. मतलब पानी सब कहां से मूव हो रहा है, the water molecules will move out of the cell. अब वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर चले जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक. Thus the cell will shrink. Right? तो अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो तो सेल स्वेल हो जाता है. अगर आप सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो तो सारा पानी बाहर चला जाता है सेल के, इसीलिए सेल श्रिंक हो जाता है. तो यहाँ पे हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात की. ऑल्दो ऑल रन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. तीनों सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट कौन से बेसिस पे हो रहा है, ऑस्मोसिस, मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा. तो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस की बात की. नाउ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर की पॉइंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हमने बात की तो हमने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके मैकेनिज्म कौन सी है, ऑस्मोसिस. अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म कौन सी है, ऑस्मोसिस. सो हियर वी टॉक दैट द ट्रांसपोर्ट और यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज, अगर गैसेस को एक्सचेंज करना है तो या तो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट्स मतलब फ्रॉम द रूट्स मतलब बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल. ये दोनों ही मैकेनिज्म हो रही है. जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बाय विच मैकेनिज्म, डिफ्यूजन. गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, बाय डिफ्यूजन. और पानी जब एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर वन ऑफ द की इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तो रह गई गैसेस की बात और वाटर की बात कि वाटर को अगर लेना हो तो बेस्ट मेथड क्या है, ऑस्मोसिस. राइट, वाटर को अंदर लेना है सेल के या वाटर को सेल के बाहर रखना है तो मेथड कौन सी हुई, ऑस्मोसिस. गैसेस को एक्सचेंज करना है तो मेथड कौन सी हुई, डिफ्यूजन. तो ये दोनों मेथड तो हो गई, बट अगर कोई दूसरे सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करना हो या सेल के अंदर लेना हो तो क्या करना पड़ता है, देयर आर अदर मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो and these methods require energy. So we will mention that the transport of nutrients between the cell and external environment and the external
environment requires energy. अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, हमने देखो गैसेस की बात की कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूजन से। हमने वाटर की बात की कि वाटर को इनटेक करना है या वाटर को एग्जिट करना है तो मैकेनिज्म क्या है, ऑस्मोसिस। पर बाकी के न्यूट्रिएंट्स का क्या, जैसे कि हमें कैल्शियम चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ये सारी चीजें हमें सेल के अंदर चाहिए। तो ये सारी चीजें सेल के अंदर आएंगी कैसे, तो वो जो मेथड्स होती है उन्हें कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किसकी जरूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स द एनर्जी। एनर्जी अवेलेबल हो तो ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है, वरना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन is flexible and made up of two important components, proteins and lipids। हमारी जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल की तरह रिजिड नहीं है, इंस्टेड क्या है, फ्लेक्सिबल है। और ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से और लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो प्रोटीन्स और लिपिड से मेम्ब्रेन बनी हुई फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है, सो इट हेल्प्स टू एंगल्फ certain large sized molecules। engulf करना मतलब अंदर की तरफ अपटेक कर लेना। तो सेल जो होता है it will be cell like amoeba, it will be extending its plasma membrane to engulf a food particle which is located nearby। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रिजिड होती तो ऐसा कुछ एक्सटेंशन बना सकेगी नहीं, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है। एज अ रिजल्ट इट विल बी फॉर्मिंग दैट एक्सटेंशंस एंड इट विल एंगल्फ। व्हाट इट विल डू, इट विल एंगल्फ दैट पर्टिकुलर फूड पार्टिकल विद इन। इस एंगल्फमेंट करना मतलब अंदर की तरफ ले लेना। तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस is known as endocytosis। this process is known as endocytosis। तो यहाँ पे endocytosis मतलब engulfing inside। और एक ये सॉल्यूशंस को रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी टेक्स्ट बुक में, एक्टिविटी 5.4। इस एक्टिविटी में आप क्या देख सकते हो कि हम एक एग ले लेते हैं। इस एग को क्या करते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। जब हम एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखते हैं तो एग का जो बाहर का जो शेल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ये जो शेल है वो ब्रेक हो जाता है। एंड देन आफ्टर एग इज सराउंडेड बाय ओनली वन थिन मेम्ब्रेन, राइट, क्योंकि एग को हमने क्या किया, HCl में रख दिया तो बाहर का शेल जो है वो रिमूव हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब सिर्फ एग के पास क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन, एक थिन स्किन बची है। अब ऐसे एग को हम प्योर वाटर में रख देते हैं। तो ऐसे एग को प्योर वाटर में रखने से क्या होगा, तो प्योर वाटर विल वर्क लाइक अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। व्हेन वाटर विल एंटर इनसाइड द एग सेल, द एग इज गोइंग टू स्वेल अप। तो एग जो है वो स्वेल हो जाएगा क्योंकि पानी अंदर आ रहा है। अगर इसी एग को, डीशेल्ड एग को, मतलब जिसमें से हमने शेल रिमूव कर दिया है, ऐसे एग को अगर हम हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो एग जो है वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि पानी एग से बाहर चला जाएगा। तो एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल वॉल।